Every pregnancy needs utmost care and attention. But certain pregnancies need a little extra attention. An Rh negative mother carrying an Rh positive baby is at increased risk of complications. BSV is at the forefront to ensure safe delivery in every Rh negative pregnancy. Today on this episode of Beyond the Boundary, I have a very special guest. She's India's vice captain, a phenomenal player और ऐसी जिसके साथ शायद बहुत से bowlers डर जाते होंगे कि जब ये पूरे फॉर्म में है. And recently she's been in great form. Today we talk about that 171 which literally changed the face of women's cricket, not Indian women's cricket, women's cricket. The year 2020, how was it for the world? How was it for her? Importance of family when you're away. The year 2021, when she was robbed of many opportunities because of injuries, COVID, and a lot of other things. People termed her as finished. She made her comeback with that excellent player of the tournament performance in the WBPL, and now aims to lift that silverware alongside legends Mithali Raj and Jhulan Goswami one final time. I welcome Harmanpreet Kaur to this edition of Beyond the Boundary. Harman, welcome to the show. First thing first, World Cup. मेरे हिसाब से पिछले जो 2 World Cup थे, we've reached the finals. Did not win that silverware. आपका इस बार क्या मोटिवेशन है कि नहीं, इस बार तो जाके वो सिल्वरवेयर लेना ही लेना है? First of all, thank you so much for inviting me. And secondly, जैसे आपने बोला कि last 2 years हम लोग finals में पहुंच रहे थे, but we were very unlucky that इतनी दूर आने के बाद भी we were not able to win the cup. But this time definitely we all are looking in great shape. Team bonding sessions we have done and a lot of things, whatever we can do, we have done everything. So अभी बस we are just waiting for that moment जब हम कप को लिफ्ट करेंगे. और if I talk about our last 2-3 series, वहाँ पे भी टीम ने काफ़ी अच्छा करा, तो एक मोमेंटम जो we were looking वो हमें मिल चुका है. now we are just waiting for the moment when we just go and lift the cup. So that, let me take you back to that 171. वो जो 171 था, that pretty much defines women's cricket. मतलब आपने मारा, लेकिन शायद इंडियन क्रिकेट और विमेन्स क्रिकेट को जो ग्लोबल मैप पे जो मार्केटेबिलिटी चाहिए थी, जो लोगों को चाहिए था कि हाँ विमेन प्ले क्रिकेट, वो शायद उस नॉक के वजह से हुआ है. प्रीटी मच द ग्रेटेस्ट नॉक इन एनी नॉकआउट गेम आई हैव एवर सीन. उस इनिंग से आपको क्या लगता है कितना विमेन्स क्रिकेट को हेल्प मिला है? एंड इट हैज कम टू अ स्टेज कि हाँ नाउ पीपल आर रियली इंटरेस्टेड टू सी कि हाँ विमेन आर प्लेइंग क्रिकेट. First of all, thank you so much for the appreciation, क्योंकि जब भी आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो as a sports person, it's very important that people should recognize that and appreciation बहुत help होती है. और definitely वो जो inning थी वो मेरे लिए बहुत important थी. And that day I really wanted to play free cricket, क्योंकि उससे पहले I was not able to perform the way I wanted, but उस time एक platform मिला, एक मुझे time मिला अपने आप को execute करने का. I think it was not only me, वो पूरा team effort था, क्योंकि उस time जो हमारी team planning थी, जो players की approach थी, I think वो सारे जब एक साथ आप सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलते हो तो आपको हमेशा positive results मिलते हैं. तो I think वो पूरा team को credit जाता है जिन्होंने हम लोगों को बैक करा, हर एक प्लेयर को बैक करा. एंड स्पेशली मी, क्योंकि उस टाइम पे आई रियली वांटेड टू डू समथिंग जहाँ पर विमेंस क्रिकेट, जैसे आप बोल रहे कि उस इनिंग के बाद काफ़ी सारे लोग विमेंस क्रिकेट को देखना स्टार्ट करे, स्पेशली इन इंडिया. जो एक सोच थी विमेंस क्रिकेट को लेके वो टोटली चेंज हो गई. एंड आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट कि वो इनिंग के बाद लोगों की जो सोच थी, उन्होंने विमेंस क्रिकेट को काफ़ी अप्रिसिएशन दिया. एंड देन अभी सब विमेंस क्रिकेट देखना पसंद करते हैं और सब वेट करते हैं कि कब विमेंस ऑल्सो स्टार्ट प्ले क्रिकेट.
तो वो सब जो चीजें थी, वो जो ओवरनाइट सब चेंज हुआ था, उस चीजों के बारे में एज ए टीम हम लोग बहुत सालों से डिस्कस करते थे कि वो टाइम कब आएगा जब जैसे हम मेंस को इतना लोग प्यार करते हैं, उनके मैचेस का वेट करते हैं, कब हमारा भी ये टाइम आएगा। लेकिन वो जब उस इनिंग के बाद ये सब बातें होने लगी एंड इट वाज रियली रियली गुड। आज भी जब लोग उस इनिंग को अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है पर्सनली। जब भी उस इनिंग की हाइलाइट्स देखती हूँ तो हमेशा वापस से मन करता है कि वैसे जाके वैसा एक इनिंग वापस से खेलूं। तो आई थिंक वो सारी चीजें जब आप वापस उस मोमेंट में जाते हो और एक सेल्फ बिलीव आता है कि अगर हम उस टाइम पे ऐसा क्रिकेट खेल सकते थे और आगे भी खेल सकते हैं, तो वही चीजें जब भी हम टीम मीटिंग में डिस्कस करते हैं कि वी ऑलवेज वांट टू प्ले गुड क्रिकेट एंड आई होप ये जो वर्ल्ड कप अभी आने वाला है उसमें भी हम एज ए टीम अच्छा खेलें, अच्छे परफॉर्मेंस देखने के लिए मिले। सारे प्लेयर्स अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, सबने बहुत सारे रन्स लास्ट ईयर में बनाए हैं। तो आई होप वो सारी चीजें हम लोग कंटिन्यू करें और एक अच्छा क्रिकेट खेले, वही हमारी टीम का मेन मोटिव रहता है। और वो पूरे इनिंग्स में आपने शोल्डर को पूरा बैंडेज वगैरह सब लगा के रखे थे और फिर भी उतना अच्छा इनिंग्स खेल पाना, I think so that's a sign of a big player and you've always done that. I think so big matches comes Harmanpreet Kaur. 2017 में हमने देखा, 2018 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड शायद कुछ सिंगल डिजिट स्कोर पे 2 विकेट डाउन हो चुके थे, आप और जमीमा ने, और फिर वो सेंचुरी हमने फिर से देखी। वो थॉट प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि एक 10 पे 2 होना कोई भी कैप्टन के लिए एक थोड़ी डरा देता है सिचुएशन को। उस टाइम पर आके एक स्टेबलाइजिंग इनिंग्स खेलना, लेकिन एक ऐसी मैच को निकाल के जाना कि हाँ यार इस मैच की वजह से शायद हम सेमीफाइनल में पहुंच जाए। आई थिंक अगेन क्रेडिट गोज टू द टीम, क्योंकि जब भी कोई प्लेयर ऐसी इनिंग्स खेलता है वो एक ओवरनाइट चेंजेस नहीं होते प्लेयर में, वो उसके लिए वो काफी टाइम से हार्ड वर्क करता हुआ आ रहा होता है। और वर्ल्ड कप से पहले वी वर लकी दैट वी गॉट गुड गेम्स बिफोर द वर्ल्ड कप एंड उस वहाँ पर एक मोमेंटम क्रिएट हुआ था। वी वर एबल टू मेक टीम कॉम्बिनेशन एंड यहाँ पर वी न्यू कि अगर कभी भी टीम में कोलैप्स होता है तो वापस कैसे कम बैक करना है। और वो जो उससे पहले हमने जो श्रीलंका सीरीज खेली थी एंड देन वी गॉट फ्यू वार्म अप गेम्स, उसके अंदर हमने एक अच्छे से टीम का जो एक प्लान क्रिएट करा था और उस प्लान के हिसाब से अगर विकेट्स फॉल हो जाते हैं देन हाउ वी कैन कम बैक एंड देन एक अच्छा स्कोर कैसे देख सकते हैं। तो वो काफी टाइम से हम लोग वो चीजें करते हुए आ रहे थे एंड आई वाज लकी दैट डे, क्योंकि जो भी हमने प्लान करा था और आई वाज एबल टू एग्जीक्यूट दोस थिंग्स। एंड जैमी ने जिस हिसाब से उस टाइम पे इनिंग को संभाला था, आई थिंक मेरे से पहले शी वाज देयर एंड उसने जो आकर मेरे साथ बात करी विकेट के बारे में, मुझे एनालाइज करवाया कि कैसा विकेट खेल रहा है, वी जस्ट नीड टू स्पेंड फ्यू टाइम आफ्टर दैट वी कैन प्ले आवर शॉट्स। तो जब एक प्लेयर आपके साथ ऐसा मिल जाता है जिसको हु नो जो क्रिकेट को अच्छे से एनालाइज कर सकता है, अच्छे से आपको एडवाइस दे सकता है, तो उसके बाद चीज़ें बहुत इजी हो जाती है। आई थिंक उसका भी उस इनिंग में बहुत ज़्यादा हाथ था, क्योंकि शी वाज देयर एंड बिकॉज ऑफ हर आई वाज एबल टू प्ले आवर शॉट्स, बिकॉज आई न्यू कि अगर मेरा विकेट उस टाइम पे चला भी जाता है, शी इज देयर who can take the inning till the end. So I think ऐसे प्लेयर्स का टीम में होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई थिंक उस टाइम पे वही था कि जो टीम का जो हमने एक मोमेंटम क्रिएट करा था, वी जस्ट वांटेड टू कंटिन्यू दैट एंड ऑफ कोर्स वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि अगर हम उस टाइम न्यूजीलैंड से जीतते तो वी वर डेफिनेटली एबल टू प्ले द सेमीज। सो उसी हिसाब से वी जस्ट वांटेड टू गिव 100% दैट डे, क्योंकि अगर वो मैच जीतते हैं तो आगे के रास्ते हमारे लिए इजी हो जाएंगे। आते हैं 2020 पे, आप वर्ल्ड कप खेले मेलबर्न में, फाइनल्स हार गए, लेकिन उसके तुरंत बाद जब इंडिया आए तो पूरा लॉकडाउन वाला सिचुएशन, शायद 2020 पूरा किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। हाउ एज अ प्लेयर एंड एज अ लीडर यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, योर टीम मोटिवेटेड, क्योंकि शायद आपकी टीम वालों को भी उतनी ही आपकी जरूरत थी उस टाइम पर कि हम कुछ खेल नहीं रहे हैं लेकिन हमको फिट रहना है एज एन एथलीट, हमको कब बुलावा आएगा कि हम नेक्स्ट मैच खेल रहे हैं हमको कुछ भी आइडिया नहीं है। और यहाँ पर उसी टाइम पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे ही फैमिली मेंबर्स या क्लोजर वंस को बहुत अफेक्ट हो रहा है।
तो आप इन सब चीजों को एज अ लीडर कैसे देखते हो? आई थिंक वो हम सब के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम था, क्योंकि आई नो जब स्टार्टिंग में हमें पता चला कि लॉकडाउन हो रहा है, फर्स्ट 1.5 month तो वी वर लाइक यार ये ब्रेक चाहिए था, बिकॉज वी वर प्लेइंग अ लॉन्ग क्रिकेट, एंड उसके बाद थोड़ा सा बॉडी को रिकवरी के लिए टाइम चाहिए था. बट आफ्टर दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो सारा साल बिजी रहते हैं, बैक टू बैक क्रिकेट खेलते हैं, बट एंड देन सडनली देयर वाज नो क्रिकेट, नो होप के कब क्रिकेट स्टार्ट होगा. तब ऐसे बीच में ऐसे होने लगा था कि पता नहीं कब क्रिकेट खेलने को मिलेगा, कब नहीं मिलेगा. एंड दैट टाइम एंड वी वर नॉट इवन एबल टू गो आउट, स्टेप आउट भी नहीं कर सकते थे घर से बाहर, ट्रेनिंग सबके पास अवेलेबल नहीं थी. तो आई थिंक उस टाइम पे वी डिड हैव फ्यू Zoom meetings with team members, and यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एंड our नरेश was there, he was helping all the girls. तो उस टाइम पे सब अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके जो भी पॉसिबल था सब कर रहे थे. बट आई थिंक उस टाइम को भी हमने बहुत पॉजिटिव वे में लिया, सो दैट वी कैन वर्क ऑन आवर फिटनेस, फ्यू एरियाज वेयर हमें जब हम टीम के साथ होते हैं हम लोग वर्कआउट नहीं कर पाते उन चीज़ों पे, स्पेशली मेंटल स्किल्स, क्योंकि उसके ऊपर वी ऑलवेज टॉक बट वी नेवर टेक इनिशिएटिव कि उसको कैसे हम लोग जैसे बॉडी को ट्रेन करना जरूरी है, वैसे ही माइंड को भी ट्रेन करना बहुत जरूरी है. उन चीज़ों के ऊपर वर्क करा, एंड जो भी पॉसिबल हो रहा था उन चीज़ों के ऊपर वर्क करा. बट डेफिनेटली जब लॉकडाउन खत्म हुआ, थिंग्स धीरे धीरे अच्छी होने लगी, जब क्रिकेट मिला, तो उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए कि एज ए टीम वापस आना और फील्ड में परफॉर्म करना. तो वो चीज़ों को सब एक साथ लेकर आना और परफॉर्म करना और जीतना वाज बिगेस्ट टास्क, क्योंकि जब भी आप फील्ड पे जाते हो हमेशा आपके ऊपर यही उम्मीद रहती है कि आप मैच जिताओ और टीम को एक ऐसी सिचुएशन में लेकर आओ ता जो एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो पाए. तो आई थिंक वो सब चीज़ें वापस से रीबिल्ड करना वाज वेरी डिफिकल्ट, बट अगेन क्रेडिट गोज टू आवर स्पोर्ट्स स्टाफ, जब BCCI जिन्होंने हमें बैक टू बैक गेम्स दिए, एंड देन वी वर एबल टू डू जो भी हमें करना था एज ए टीम. आई थिंक उसके बाद जो आफ्टर इंग्लैंड टूर, ऑस्ट्रेलिया टूर, जो भी एक मोमेंटम मिला है, तो आई थिंक इट्स टोटली हम लोग BCCI को और हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ को क्रेडिट दे सकते हैं जिस हिसाब से वो हमारे ऊपर वर्क कर रहे हैं. इन सब चीजों में एक फैमिली का क्या पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि आप रह रहे हो फैमिली के साथ लेकिन शायद आपका दिमाग कहीं और ही चल रहा है. और दूसरी सिचुएशन जब आप एक बबल में रह रहे हो, क्योंकि आजकल सब लोग बबल में रह रहे हैं, आप आपकी फैमिली मेंबर्स को कैरी नहीं कर सकते हो, और उस टाइम पर लेकिन याद तो सबको ही आती है. तो हाउ मच इम्पोर्टेंट इज योर फैमिली एंड दैट सपोर्ट कि हाँ वो है भी मेरे साथ लेकिन वो नहीं भी है? आई थिंक ड्यूरिंग दिस टाइम अगर किसी ने सबसे ज़्यादा हेल्प करी है वो फैमिली मेम्बर्स है, क्योंकि जैसे आई थिंक मेरे 10 साल हो चुके हैं जब मैं बैक टू बैक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही हूँ. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का इतना मौका नहीं मिल रहा था. तो इस टाइम पे टाइम फैमिली के साथ जब टाइम स्पेंड करा, तो एक टाइम पे तो मुझे ऐसे लग रहा था आई डोंट इवन नो माई फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि इतने साल इतने टाइम से इतने मतलब हम दूर थे. जब भी घर जाते थे एक गेस्ट जैसा बिहेव होता था, एक वीक के लिए जाना, 10 दिन के लिए जाना, थिंग्स वर मोर फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती थी. देन आई डोंट थिंक दे वर एबल टू ट्रीट अस लाइक अ फैमिली मेंबर. उनको बस हमेशा ये रहता था कि इनकी जो भी डिमांड्स है बस वो पूरी हो जाए. लेकिन उस टाइम पे अपने फैमिली मेंबर्स को जानना, बचपन की सारी बातें करनी, स्पेशली व्हेन आई गॉट सम टाइम टू स्पेंड विद माय ब्रदर, जब हम बचपन की बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ, कुछ तो मेमोरीज आई फेल्ट कि यार मुझे तो कुछ बातें याद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि आगे न्यू मेमोरीज इतनी बिल्ड हो रही थी कि पुरानी वाली याद भी नहीं आ रही थी कि वो जो बातें कर रहा था, लाइक अच्छा ऐसा भी हुआ था, ऐसे भी हुआ था. एंड देन इट वाज सो नाइस टू स्पेंड टाइम विद देम. बचपन की सारी बातें करना, सब वो पुरानी यादें वापस आई. एंड देन स्पेशली क्रिकेट मोमेंट से जब खेलना स्टार्ट करा था, कितना क्रिकेट के लिए क्रेज था, पैशनेट होते थे, क्योंकि
we all know women's cricket इतना famous नहीं था, but still you know मैंने cricket choose करा, and then many other girls जिनके पास cricket platform नहीं था उन्होंने cricket choose करा. वो सारी चीजें you know वापस से याद करना, वापस से अपने आप को motivate करना. you know cricket सामने नहीं था, but still cricket की जो memories थी उन्होंने इतना motivate करा so that you know जब भी आगे मौका मिलेगा खेलेगा. I actually felt like you know I'm playing my first international cricket after lockdown. उतना pressure feel हो रहा था, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि 10 साल क्रिकेट खेलते हो चुके हैं, अगेन आफ्टर 10 years एंड प्लेइंग एनी अदर क्रिकेट गेम. ऐसा फील हो रहा था कि आज पहला मैच है, डेब्यू कर रहे हैं. तो वो सारी फीलिंग्स वापस से फील करना, आई थिंक कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी थी अगर ऑल ओवर देखा जाए, और कुछ चीज़ें ये भी थी यू नो वापस से अपनी फिटनेस को मेंटेन करना, क्योंकि प्लेयर लाइक मी हु ऑलवेज लाइक टू गिव 200% ऑन द फील्ड, एंड एक साल कोई क्रिकेट नहीं, एंड देन सडनली गोइंग टू द फील्ड एंड गोइंग विद द सेम अप्रोच. तो वो चीज़ें कैसे बैलेंस करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें यू नो इस टाइम ने सिखाई कि लाइफ में यू नो यू जस्ट कांट गो ब्लाइंड, यू हैव टू हैव गुड प्लान्स एंड देन स्टे ऑन देम. इट्स मोर इम्पोर्टेंट. तो वो सारी चीज़ें लर्न करना, आई थिंक इट वाज आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस. फैमिली का इम्पोर्टेंस शायद सबकी लाइफ में इतना है, लेकिन 2020 ने हमको वो सिखा दिया कि हाँ सच में कितना है फैमिली हमारे लिए, कितनी इम्पोर्टेंट है. हम शायद उनको कैजुअली ले लेते हैं, लेकिन 2020 ने हमको सारा सिखा दिया. आते हैं 2021 पे. आई वांट टू टेक दैट एंटायर ईयर. आप होम सीरीज शुरू करें साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें ग्रोइन इंजरी हो गया, फिर उसके बाद में थोड़ा ब्रेक था तो कोविड हो गया, फिर इंग्लैंड गए क्वाड इंजरी, फिर ऑस्ट्रेलिया गए थंब इंजरी, यू इवन मिस्ड आउट ऑन दैट टेस्ट मैच. अ लॉट ऑफ पीपल, fans, people who don't even understand or know women's cricket, former players, सारे लोगों ने लिख दिया था कि हरमनप्रीत कौर इज फिनिश्ड. कि अब शायद हरमनप्रीत कौर से हमको उतने एक्सपेक्टेशंस नहीं है. इन्होंने शायद ओवरसीज लीग्स नहीं खेलना चाहिए क्योंकि इनको फिटनेस मेंटेन करना है. ऐसे सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बोली आपके बारे में. एंड देन द WBBL हैपेंड. मेरे हिसाब से मुझे ये पूरा साल का जानना है आपसे कि जब लोग ऐसा सब सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो हम सारे ही लोग एक्टिव हैं, तो जब लोग ये लिखते हैं, हाउ डू यू टेक दैट एंड what motivates you to come out of it and perform the way you did in the WBBL? Well, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि यू नो थिंग्स को बैलेंस करना, क्योंकि जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो आपको एप्रिसिएशन मिलती है, वो भी अच्छी लगती हैं. और जब यू नो परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होती तब भी यू नो सेम पीपल कम एंड टेल यू नो यू आर नॉट डूइंग वेल. सो आई थिंक उन चीज़ों को बैलेंस करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनिशियली ऐसे होता था कि जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता था, ऐसे लगता था यू नो मेरे से ऊपर कोई नहीं है. बट जब लोग ऐसे बोलते थे कि यू नो जैसे आपने बोला कि हरमनप्रीत इज फिनिश, तो ऐसी चीज़ें भी आती हैं लाइफ में. तो अपने आप को यू नो वापस इतना नीचे लेके चले जाना, एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट यू नो पुल योरसेल्फ, क्योंकि हम किसी को बड़े इजीली बोल देते हैं कि इट्स ओके, डोंट थिंक टू मच, आप बस अच्छी चीज़ों पे फोकस करो. बट अपने आप से वो बातें करनी इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अपने आप को मोटिवेट करना इट्स मोर डिफिकल्ट देन यू नो टेलिंग समवन एल्स, क्योंकि हम दूसरे की पेन उतने अच्छे से नहीं समझ सकते जितनी खुद की समझ सकते हैं. तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू नो एज आई सेड कि आई एम समवन हु लाइक टू गिव 200% ऑन द फील्ड, एंड देन एक साल पूरा क्रिकेट नहीं खेला, बट देन सडनली आई वाज गोइंग विद द सेम फ्लो. दैट वाज द बिगेस्ट रीजन यू नो आई वाज गेटिंग इंजर्ड बैक again and again. And then thumb injury was something you know it was very surprising, क्योंकि ball लगा and then fracture होना, it was something you know out of control. And I was actually there was no thoughts कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि अभी तो like I was just recovering from groin injury and suddenly, but then again you know I took some time, I talked to myself that
चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बट नाउ आई गॉट सम मोर टाइम टू वर्क ऑन माई फिटनेस, क्योंकि थंब इंजरी की वजह से आई कुड नॉट बैट बॉल फील्ड, but I can definitely work on my fitness and where I can get more confidence. And I think that was the reason I got result in WBBL, क्योंकि उस time पे I was able to work with our Indian trainer, physio, and they were there to help me out. क्योंकि आप घर पे होते हो, no doubt they are always there to help you, but सामने होकर आपको help करना is something very important. Ramesh sir was there, he was continuously talking to me, our batting coach was there, so I think उन सबका वहाँ पर मुझे हेल्प करना was something जो उस टाइम पे एक प्लेयर को चाहिए होता है जब उसको बैक टू बैक इंजरीज हो रही होती है, एंड जो आपका मेन परफॉर्मर भी है। तो आई थिंक उस टाइम पे जो मुझे टाइम मिला अपने आप के ऊपर वर्क करने का, एंड देन आई गॉट रिजल्ट इन WBBL, दैट वाज समथिंग जो मुझे एज ए पर्सन लाइक आई फेल्ट रियली गुड, क्योंकि काफ़ी टाइम से आई वाज वर्किंग हार्ड, बट देन setbacks हो रहे थे, back to back injuries हो रही थी, but then when I got a result and without any pain I was able to play, that was something जो मुझे as a player उस टाइम पे मुझे जो मेरे टारगेट थे जो मुझे अचीव करना था कि I wanted to play cricket but wanted to play without any pain. So I think अपने आप पे रोज every day एक भी दिन नहीं था when I didn't do workout, एक भी दिन नहीं था जब मैंने lazy feel करा, because that was something कि every day I was waking up and working on myself, and without single day कि जब मैंने वर्कआउट नहीं करा और फिटनेस नहीं करी, बैटिंग नहीं करी, बॉलिंग नहीं करी, that was the reason I think I got results, and that is something I would love to continue in the future also, क्योंकि जो चीज़ें आपको हेल्प करती है it's very important to continue them. तो मार्च से सितंबर वाला पीरियड था, वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग था आपके लिए? आप बोल रहे हो कि आपने खुद से बात की, बहुत लोगों को ये डिफिकल्ट पड़ेगा कि शायद खुद से बात कैसे करते हैं, शायद लोग उसका ढिंडोरा पीटते हैं कि अरे मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप कैसे खुद से वो ऐसा क्या बात कर लेते हो कि यू मोटिवेट योरसेल्फ, और डू यू स्पीक टू एक 3-4 लोगों का आपका है कि हाँ मैं पापा से, मम्मी से या किसी दोस्त से इतनी बात कर सकती हूँ और वो मुझे हेल्प करेंगे कि अभी जो मैं पोजीशन में हूँ तो शायद मुझे हेल्प मिल जाए वहाँ पर? डेफिनेटली फैमिली तो सबसे बड़ी सपोर्ट होती है। उनके साथ जब भी मैं बात करती थी, जो मेरे मॉम डैड है, दे आर वेरी पॉजिटिव पर्सन, वो हमेशा मुझे यही बोलते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। चलो इससे पहले यू वर मैनेजिंग एंड प्लेइंग, बट थंब इंजरी के बाद एटलीस्ट अभी लाइक यू कैन वर्क ऑन योर 100% फिटनेस एंड देन यू कैन गो एंड परफॉर्म। तो इसमें भी एक पॉजिटिव है इफ यू थिंक, एंड पीपल अराउंड मी, स्पेशली माई क्लोज फ्रेंड्स एंड माई टीममेट्स, और उन लोगों ने भी मुझे बहुत हेल्प करा, क्योंकि जब भी मेरे अंदर 1% भी डाउट आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि रोने का मन कर रहा था, चलाने का मन कर रहा था, बट देन they were always there to tell me that it's okay, मे बी ये जो टाइम है 10-15 दिन है, 2 weeks है, आपको बस निकालने हैं, एंड देन योर टाइम विल कम, एंड एवरीवन अराउंड मी दे वर सो पॉजिटिव। जब भी मेरे साथ बात कर रहे थे मुझे यही बोल रहे थे कि आने वाला टाइम इट्स योर टाइम, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट वर्क ऑन योर फिटनेस। ये भी maybe God is giving you some signals, you can rest for some time, you can do more fitness, you can work on your court, and then you just go and perform, then you can play free cricket without any single doubt के कुछ extra करा तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, at least you can go freely and play. So I think उस time पे अपने आप को सिर्फ ये बातें बोली कि it's okay, कि जो भी है जैसा भी है, जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन द गॉड, बिकॉज मेरे हाथ में जो है मुझे बस उस चीज़ पे ही फोकस करना है। जो चीज़ें बियॉन्ड माई थिंग्स मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, सो कंट्रोलेबल थिंग्स के ऊपर फोकस करना इज मोर इम्पोर्टेंट अदर देन जस्ट हमेशा अपने आप को ये बोलते रहना कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। तो जब भी आप 2 मिनट भी अपने आप से ऐसी बातें करते हो, यू कैन सी ऑटोमेटिकली पीपल कम टू यू एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट टॉकिंग द सेम थिंग्स। जब आप नेगेटिव बातें करते हो, पीपल विल ऑल्सो कम एंड टेल यू द नेगेटिव थिंग्स की, तब वो चीज़ें कंटिन्यू होती है। तो पहले अपने आप को पॉजिटिव बातें बोलना, एंड देन ऑटोमेटिकली जब आपकी अप्रोच पॉजिटिव रहती है, पीपल विल डेफिनेटली कम एंड टेल यू पॉजिटिव थिंग्स। तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था कि अगर मेरे चोट भी लगी है, बट स्टिल
I will never show to my teammates क्योंकि वो लोग भी everybody they wanted me to play but I was not there, but उनको सिर्फ मेरी तरफ से सिर्फ इतना push करना है कि it's okay guys, you are there, you will definitely win this game for our country, and our team was doing really well and I was very happy to see that क्योंकि team अच्छा कर रही थी, atmosphere अच्छा था, सब positive थे, and I was also staying in the positive atmosphere, वो भी मुझे बहुत help कर रहा था. तो just staying in good frame of mind वही एक ही ऑप्शन था, उसके बिना कोई और ऑप्शन नहीं था और मुझे उसी ऑप्शन के साथ कंटिन्यू करना था. एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट जब मेरे टीममेट जो मेरे पास थे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करा. दे वर ऑलवेज देयर टू हेल्प मी. जब भी मुझे थोड़ा बहुत माइंड इधर उधर हो रहा था, दे वर जस्ट देयर होल्डिंग मी, एंड आई थिंक इट वाज ग्रेट टू हैव सच अ ग्रेट टीममेट. Great to have such great teammates. Stay positive और अपने आप आसपास की चीजें पॉजिटिव होंगी. और जैसे आपके टीममेट ने कहा कि आने वाला दिन आपका है, तो वैसे ही हुआ. WBBL you performed really well. आपने कुछ चीजें बताई कि जैसे आपने कभी पावर प्ले में बॉलिंग नहीं की थी तो आपने वहां पे करी और उसके बाद आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आया. न्यूजीलैंड की कंडीशंस बहुत ज़्यादा, पूरी तो नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगी ऑस्ट्रेलिया से. हाउ मच दैट WBBL परफॉर्मेंस और इफेक्ट इज गोइंग टू हेल्प यू इन न्यूजीलैंड? जब after the T20s Australia tour के बाद, when first time I spoke to our WBBL coach Simon, the first thing when he said like he never talked to me about my batting. He was like, I know you can bat, I know whenever you get chance you can always perform for your team. He was only talking about my bowling skills, and I was very surprised to see that someone I have never met, but he was like, I saw your bowling, I know you're capable of bowling in the power play. I was like, I have never done bowling in the power play. Yes, initial days when T20 just started, yes, I did few games, but I don't even remember that what I was doing that time. But he was like, no, I know you can bowl in the power play. And that night I was only thinking about my bowling, and I was like, this is something new which I'm doing right now. And I don't know, like I was enjoying that. Somebody gave me the responsibility, bowling responsibility, which is something new, and I was like, I want to do that. It is challenging. I know, we do have very hard hitters in WBBL. They can actually take out your bowling skills and finish your career when you're bowling to them. But still I was like, no, like I want to bowl, I want to see what I can do there, and I want to test my skills. And luckily I was able to perform the way they were expecting from me. And especially our captain Sophie, she was someone, she was always there to help me, and everyone around us. And I think वो जो एटमॉस्फेयर था, I really enjoyed, क्योंकि the first thing, हम लोग किसी को ज़्यादा जानते नहीं थे. Our whole team was new, only 2-3 girls who already played for Renegades. Otherwise all new members were there. But एक दूसरे को help करना और एक दूसरे को टीम को एक दूसरे की गेम को बैक करना was something, Jamie and I, we both were very much enjoying that, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव बातें हो रही थी और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट था. एंड एवरी डे हमारा जो बेस्ट थिंग थी हमारी टीम की, वो ये था कि वी वर नॉट लुकिंग टू विन, वी वर ओनली लुकिंग टू डू जो भी हमने टीम मीटिंग में डिस्कस करा है. एंड वी वर ओनली टिकिंग दोस बॉक्सेस कि हमने ये डिसाइड करा था, आर वी एबल टू डू दैट. और उसके बाद रिजल्ट वाज ऑटोमेटिकली कमिंग. हमने कभी अपने ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट करा कि हमें मैच जीतना है और मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं. वी वर ओनली लुकिंग टू डू जो भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे. एंड एज यू मेंशन कि कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम रहेगी न्यूजीलैंड में. थोड़ा सा विंडी होता है, अदरवाइज विकेट वाइज एंड ग्राउंड वाइज थिंग्स विल बी सेम. एंड आई होप जिस हिसाब से आई वाज एबल टू बैट देयर, बॉल देयर, आई वुड लव टू कंटिन्यू दोस थिंग्स, क्योंकि वो जो एक कॉन्फिडेंस मिला है उसको कंटिन्यू करना इज द बिगेस्ट टास्क. एंड आई थिंक वो मुझे मेरा मेन अभी 50 ओवर वर्ल्ड कप में और न्यूजीलैंड सीरीज में वही रहेगा कि जो भी मैं BBL में अपने आप से बात कर रही थी, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर वर्क कर रही थी, वही चीजें कंटिन्यू करूँ. आते हैं न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में. हमारा पहला मुकाबला है पाकिस्तान के अगेंस्ट.
पाकिस्तान शायद इंडिया पाकिस्तान विमेंस में उतना ज्यादा हाइप नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है लेकिन अल्टीमेटली इंडिया पाकिस्तान गेम इन इटसेल्फ इज ह्यूज। आपका क्या मतलब, एक हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल ले, हम इंग्लैंड के साथ खेले, हम शायद किसी के भी साथ खेले, लेकिन पाकिस्तान के साथ जब खेलते हैं तो एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, लोग आते हैं उसी टाइप में सपोर्ट करने के लिए, एक मार्केटेबिलिटी शायद सबसे ज्यादा उसी मैच की, और उसी मैच से भारत का शुरुआत हो रही है। देखिए, अब फॉर अस हर एक गेम इम्पोर्टेंट है। आई नो फर्स्ट गेम इज अगेंस्ट पाकिस्तान, बट कोई भी टीम हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, पहला मैच हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। और अभी जैसे आपने बोला कि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है क्योंकि पाकिस्तान के साथ आप खेल रहे हो, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही रहता है कि हम लोग वहाँ पर जाएं, अच्छा परफॉर्म करें, मैच जीतें, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैच जितना इम्पोर्टेंट होता है और अच्छा क्रिकेट खेलना इम्पोर्टेंट होता है अदर देन टेकिंग एक्स्ट्रा प्रेशर। क्योंकि अभी अगर आप देखो विमेंस क्रिकेट में सारी टीम्स ने इम्प्रूव करा है, कोई भी टीम ऐसी नहीं है यू कैन टेक इट इजीली कि हम कल का मैच इजी और वी कैन गो इजी, बट हर एक टीम बहुत इम्प्रूव करी है। पाकिस्तान क्रिकेट ने भी लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत इम्प्रूव करा है, उनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। और आई थिंक हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि हम अच्छा क्रिकेट खेलें, अच्छा परफॉर्म करें। इसे ऊपर आई डोंट थिंक हमने कभी ज़्यादा सोचा है और ना ही हम कभी सोचेंगे। ना ही हमने ज्यादा कभी सोचा है, ना ही सोचेंगे। पाकिस्तान का गेम इज मोर और लेस सिमिलर टू एनी अदर गेम फॉर हरमन, लेकिन शायद देश ऐसा नहीं सोचेगा। और मुझे एक सवाल और पूछना है कि ये पर्टिकुलर वर्ल्ड कप मिथाली राज और झूलन गोस्वामी का आखिरी वर्ल्ड कप है। they have been two legends of the game, have played more than 20 years. Finally it's time for that swan song. 2011 में सचिन तेंदुलकर के लिए शायद पूरी टीम ने खेला था और उस टाइम पे वो ट्रॉफी हमारे हाथ में आई थी। तो पहले तो आप इन दोनों के बारे में बताइए, और आपको क्या लगता है कि टीम वैसे खेलेगी कि हाँ एंड ऑफ द टाइम वी आर गोइंग टू लिफ्ट दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड कप? पहले तो मुझे लगता नहीं कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होना चाहिए, बिकॉज द वे दे आर परफॉर्मिंग आई थिंक उनका क्रिकेट करियर कभी बंद ही नहीं हो सकता है। बिकॉज जैसे जोलूदी अपनी फिटनेस के ऊपर वर्क करके अभी तक सेम स्पीड सेम लेंथ वो जो कैरी कर रही हैं, एंड देन अगेन मिथाली दी द वे शी इज परफॉर्मिंग, द वे शी इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्लेइंग, आई थिंक उनको कभी क्रिकेट छोड़ना ही नहीं चाहिए। द वे दे आर परफॉर्मिंग फॉर आवर इंडियन क्रिकेट, एंड डेफिनेटली हम हर वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट होता है। हर वर्ल्ड कप यही अप्रोच रहता है कि वी कैन जस्ट गो एंड परफॉर्म। और इस वर्ल्ड कप में स्पेशल हम लोग एफर्ट डालना चाहेंगे, बिकॉज वी डोंट नो मे बी if they don't continue till next world cup and what we have to do, and ये जो वर्ल्ड कप है डेफिनेटली हमारे लिए बहुत स्पेशल रहेगा, क्योंकि हमारे जो स्पेशल प्लेयर्स हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, वो इस वर्ल्ड कप में हम लोग हमें उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं वी जस्ट वांट देम टू कंटिन्यू दैट, सो दैट क्योंकि वो हमेशा वो एक मैच विनर्स हैं। जब भी वो परफॉर्म करते हैं टीम जीतती है, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम। एंड जब भी डेफिनेटली हमारा जो टीम का जो अप्रोच रहेगा यही रहेगा कि हम उनको बेस्ट मेमोरीज दे सकें, और जो भी वो डिजर्व करते हैं उनको वो दे सकें, क्योंकि आई थिंक दे डिजर्व एटलीस्ट वन ट्रॉफी। और हम लोग अपना 200% से भी ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली व्हेन योर टीम इज लुकिंग ग्रेट, एवरीबडी इज इन ग्रेट फॉर्म, एंड you just don't want to miss this opportunity, and we will definitely try to give our best so that they can lift this trophy. They can lift this trophy, and so can you. The last question: 2017 World Cup finals, 2018 World Cup semi-finals, 2020 World Cup finals. इस बार वो एक winners tag आएगा. What is the motivation of big match player Harmanpreet Kaur to be in that World Cup and take that silverware first time for the Indian women's team? आई थिंक इससे बड़ा मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम जैसे आपने बोला
3 वर्ल्ड कप की बात करें, एवरी टाइम वी वर एबल टू रीच द फाइनल्स, बट जो वो थोड़े से मार्जिन थे, वी वर नॉट एबल टू विन. दिस टाइम वी विल डेफिनेटली लुक दोज small mistakes which we have done in the past, and this time extra awareness, extra performance, थोड़ा अगर extra हम लोग push करते हैं, we have that that thing to win this World Cup. And I think ये जो World Cup होगा, इस World Cup में भी we will I will definitely look to give my 100% so that जो भी मेरी टीम को मेरे से उम्मीदें हैं, मैं वो उम्मीदों पे खरे उतरूं. एंड हमारी टीम, जैसे मैंने बोला कि एवरीबडी इज लुकिंग इन ग्रेट शेप, एंड अगर हम लोग जो क्रिकेट हमने लास्ट 2-3 महीने खेला है, अगर वही क्रिकेट हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आई थिंक नोबडी इज देयर टू स्टॉप अस. एंड आई होप जो भी हमें अपने आप से उम्मीदें हैं, अगर हम उतना भी करेंगे तो वी कैन डेफिनेटली लिफ्ट दिस कप. You can definitely lift this cup, and I hope so that India wins the World Cup now. April 2nd was the time India last won the World Cup. April 3rd should be the date India next wins the World Cup now. Yes, thank you, Harman. Thank you, Harman, for your time. आपने बहुत अच्छे से explain किया कि इंडिया के World Cup preparations क्या है, पिछला 4 या 5 साल आपके लिए क्या रहा है, and we hope that this time around it's you lifting the trophy for the country. Thank you so much, yes, thank you.